السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایک دن کے بعد رمضان کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرما دے، مقدر کی بات ہے، جس کو اللہ چاہیں گے اسے ہی نصیب ہوگا۔ دو صحابہ تھے، اکٹھے ایمان لائے، ایک جیسے اعمال کیے، جہاد میں بھی شریک ہوتے رہے، نمازیں بھی ایک جیسی پڑھی، سارے اعمال ملتے جلتے۔ ایک صحابی کا 1 سال پہلے انتقال ہوا اور دوسرے صحابی کا پورے 1 سال کے بعد ان سے انتقال ہوا۔ ان کے ساتھیوں نے خواب میں دیکھا کہ جن کا انتقال بعد میں ہوا تھا وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے، اور جن کا انتقال پہلے ہوا تھا وہ بعد میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے اعمال ایک جیسے تھے، دوست بھی تھے اور ایک جیسے اعمال کیے دونوں نے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ اکٹھے کیوں نہیں داخل ہوئے، پہلے کیوں حق ملا جو بعد میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دیکھتے نہیں اس کو 1 سال کا رمضان مل گیا، 1 سال کے اس کے روزے بڑھ گئے، 1 سال کے ذکر اذکار، نماز، تراویح، ساری چیزیں بڑھ گئیں، اس کی وجہ سے اس کا درجہ تھوڑا اس سے بڑھ گیا۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت، سلامتی، سہولت، آسانی، عافیت والا، خیر و برکت والا، ایمان و اعمال والا اور قبولیت والا رمضان نصیب، یہ دعا کیا کریں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس رات فوت ہو جائیں گے، جو چند گھڑی پہلے فوت ہو جائیں گے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ اپنے کرم سے نصیب فرما دیں ہم سب۔ تو یہ یقیناً ہمارے نامہ اعمال میں ایک بہت بڑا کریڈٹ ملتا ہے، اس کا بہت بڑا ایک انعام ملتا ہے، جس کو اللہ مزید نصیب فرما دے۔ حضرات، آپ حضرات سے عرض کرنا ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے ہماری لائف میں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے بہت پہلے سے پلان کرتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، اب دیکھتے ہیں گھروں میں شادیوں کا معاملہ ہوتا ہے تو سال 2 سال پہلے لوگ پلاننگ میں لگ جاتے ہیں، کیا ہوا جی شادی ہوئی،
हालांकि कोई इतना इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं है मेरी नज़र में, शादी है वो हो जाती है सादगी से, कोई मसला नहीं। लेकिन 2-2, 3-3 साल पहले लोग ना उस परेशानी के अंदर रहते हैं, शादी है, और उसके लिए बकायदा प्लान करते हैं, तजवीज़ें होती हैं, मशवरे होते हैं, सब कुछ होता है। इसीलिए अगर आपकी नज़र में ये इम्पोर्टेंट इवेंट है रमज़ान, तो फिर इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने अर्ज़ किया था कि इंसान अपनी तरजीहात से पहचाना जाता है। अब सबसे पहले इंसान का इरादा बनता है, फिर उस इरादे पर अमल करने की नीयत होती है। अब नीयत की प्रैक्टिकल जो शक्लें हैं वो फिर प्लानिंग की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। इंसान उस नीयत को रूबा अमल लाने के लिए उस पर प्लानिंग करता है, तजावीज़ करता है, सोचता है, गौर करता है कि मैं कैसे इसको अमल में लाऊं। यही सूरत हाल रमज़ान की है। यानी अब सब दोस्त जिनकी ज़िंदगी में रमज़ान, एक और रमज़ान आ रहा है, वो सारे घर मिलकर बैठ जाएं और सोचें कि अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का मेहमान है, एक और हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, तो हम किस तरह इसका इकराम करें, किस तरह इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और फिर इसमें खुद नहीं, बीवी को बिठाएं, बच्चों को बिठाएं, पूरी फैमिली मिलकर इसका मशवरा करें। हम बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वो यानी एज होती है, यही 2, 3, 4, 5 साल से ये काम शुरू हो जाता है कि बच्चों को अगर आप शामिल करें तो ना चाहते हुए भी उनके जहन पर असरात होना शुरू हो जाते हैं। माँ बाप घर के अंदर जो करते हैं, बच्चों के कान जो हैं वो उनकी आंखों में होते हैं। आपको पता है, बच्चों के कान उनकी आंखों में, जो देखते हैं वो उस पर अमल करते हैं, सुनते बहुत कम है। असल चीज उनको दिखाना है अमली तौर पर घरों के अंदर क्या अमल हो रहे हैं, वो बच्चों पर असरअंदाज होते हैं। मेरे एक दोस्त कहने लगे, कुलीग थे, मेरे बेटे को आप ऐसे करें, बांगे दरा पढ़ा दें। ये अच्छा जी, मैं खामोश हो गया। फिर कहने लगे अच्छा दीवाने गालिब पढ़ा दें। फिर मैं खामोश रहा। फिर कहते हैं तुम जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा जवाब मैं इसलिए नहीं देता कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं किसी फैमिली से वाकिफ था कि तुम्हारी बीवी MA उर्दू है, कसम खा के बताना कभी 20-25 बरस हो गए तुम्हारी शादी को, कभी तुमने बच्चों के सामने इकबाल या गालिब की बात की है? कहता नहीं। मैं कहा फिर वो क्यों पढ़ेंगे? मैं कहा मैंने अलहदगी में तेरे बेटे से पूछा था, FA में पढ़ रहा था, उसने मुझसे राह रास्त सवाल किया कि मुझे क्या फायदा होगा इसके पढ़ने से, क्यों पढ़ूं, वाई? मैंने कहा उसका ये सवाल जेन्युइन था, मैं उसका जवाब नहीं दे सका क्योंकि उसको पता ही नहीं, कभी उसने जिंदगी में आज तक गालिब इकबाल का नाम सुना ही नहीं। अगर कभी उसने घर में माँ बाप से, आपसे सुना होता तो यकीनन मुझसे ये सवाल ना करता कि गालिब कौन है, इकबाल कौन है, क्या मसला है। कहते हाँ ये बात तो थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये होते हैं असरात बच्चों पर। घरों के अंदर जो बातें होती हैं बच्चों के जहन के अंदर फीड हो रही होती हैं, घरों के अंदर जो अमाल हो रहे होते हैं बच्चों के जहन के अंदर फीड हो रहे होते हैं। बच्चे बाजार खामोश रहते हैं लेकिन वो सारे अमल हो रहे होते हैं। कल यानी बड़ी मजे की बात है, ये पोता मेरा 8-9 साल का था। अच्छा हम नहीं देख, वो समझ रहा था घर वाले नहीं देख, अब उसने सारे छोटे बच्चों को बिठाया, अपने से छोटे जो हैं 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, और खुद अब्बा जी बन गए। और अब्बा जी बन के वही काम जो उसके अब्बा जी करते हैं वो सारे काम उसने इंस्ट्रक्शन दी बच्चों को। अब अंदाजा फरमाए ये असरात हो रहे होते हैं। बोलता नहीं, बाजार हमें नहीं बताता, लेकिन जब अलहदगी में बच्चे होते हैं तो खामोशी से आप देखिए वो करते क्या है, बातें क्या करते हैं, वही बातें करेंगे, वही काम करेंगे जो घरों के अंदर हो रहे हो। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि इसकी प्लानिंग आप करें, लेकिन इसमें बच्चों को नजरअंदाज ना करें। बच्चों को बिठाएं, बीवी को बिठाएं, और अगर घर में कोई अफराद है उनको बिठाएं और उनसे मशवरा लें कि ये रमज़ान हमारा पहले रमज़ान से कैसे बेहतर हो, किस तरह हम और अगली मंजिल तय करें, किस तरह अल्लाह का कुर्ब हमें मजीद मिल जाए। होते हैं मशवरे, लेकिन कहाँ पे होते हैं? सहरी इफ्तारी के बाद। तो किस तरह ज्यादा खाया जाए, यानी खाया किस तरह ज्यादा जाए।
जो कमी रह गई होगी सारा दिन की, उसको अफ्तारी में कैसे पूरा किया, इसकी परेशानी होगी। इस तरह के मशवरे होते हैं, लेकिन ये मशवरे बहुत बात के हैं, इनकी अहमियत बहुत कम है। असल अहमियत ये है कि रमज़ान जिस मकसद के लिए अल्लाह ने दिया है, क्या हम उस मकसद को किस तरह हासिल करें, कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ किस तरह कायम हो जाए, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हमारा कैसे कायम हो जाए, रोज़ा जो है जाते जाते तक़वे की मज़ीद मंजिलें हमें कैसे अता कर जाए। ये प्लानिंग है, प्लानिंग की बड़ी अहमियत होती है, हम हमेशा इसको नज़रअंदाज करते हैं। ये सुपर स्टोर चेन्स होते हैं बड़ी बड़ी, यहाँ भी हैं, गालबन मेट्रो है, कैरेफोर है, इस तरह की चेन्स मौजूद। जर्मनी में एक चेन है सैटर्न के नाम से, सुपर स्टोर है, तो 150 से ज़्यादा उनकी ब्रांचेज हैं पूरे मुल्क के अंदर। उन्होंने एक नई ब्रांच खोलने का फैसला किया कि एक नई ब्रांच खोलें। अब उसके इंसेंटिव के लिए उन्होंने कहा कि 40,000 लोग जो हैं आए, हम उनका एक क्विज लेंगे, एक टेस्ट देंगे, इनामी मुकाबला होगा, और वो उनमें से जो भी जीत जाएंगे, चाहे 1000 जीते, 2000 जीते, 4000, 5 जितने भी जीते, उनको हम फलां तारीख को 150 सेकंड देंगे, यानी 3 मिनट से भी कम। 150 सेकंड के अंदर वो हमारे स्टोर से जो भी चीज उठा के भाग जाए उनकी हो, ये उनका इनाम होगा। जो मर्जी उठा ले, कीमती से कीमती, छोटी से छोटी, जो भी उठा। ये फैसला हो गया, अब इसका ऐलान हुआ, अब नई ब्रांच का इफ्तिताह करना था। खैर मौका उस दिन आया, बहुत सारे हजारों लोगों ने उनके उस इम्तिहान को कामयाब किया। अब उन्होंने कहा ठीक है, अब टाइम शुरू हो गया, कि टाइम शुरू हो गया, लोग भाग पड़े, और जिसके हाथ में जो आया, धींगा मुश्ती और जनाब जो लड़ाई मार पिटाई, और लोगों ने जो जो चीज हाथ आई वो बाहर निकाली। एक नौजवान था, उसका नाम था सेबेस्टियन, अब वो भी इस मुकाबले के अंदर शामिल था। अब जो अक्सरियत जो लोगों थी 99%, वो क्या निकाल को 50 की चीज, को 100 की चीज, को 200 की चीज, 500 की चीज, ज्यादा से 1000 की चीज है। अब इस नौजवान ने 29,000 यूरो की चीजें निकाली। 29,000 यूरो कितने होते हैं? 1 यूरो तकरीबन 205 रुपए का है। आप हिसाब आपको लगा लें, लाखों में पड़ेगा, 60-70 लाख तक पड़ जाए। ये 29,000 यूरो की चीजें निकाल के कामयाब रहा। इसने क्या निकाला? इसने आईफोन निकाले, लैपटॉप निकाले, कीमती मोबाइल निकाले, कीमती कीमती घड़ियां निकाली, इस तरह की चीजें जो सारी, और ट्रालियां भर के बाहर लाता था। आखिर में आखिरी सेकंड में भी इसने यानी माफ नहीं किया, फ्रिज निकाल लिया। आखिरी सेकंड में फ्रिज ट्राली के अंदर रखा, बाहर लिया, और इतना एग्जॉस्ट हुआ यानी इस पूरे अमल के अंदर कि बाहर आकर गिर पड़ा, और गिरते गिरते कहने लगा मेरी प्लानिंग कामयाब हो गई। अब वो नामा नगार टीवी वाले भी सारे इस शो को कवर कर रहे थे। अब टेलीविजन वाले ने पूछा कि तुम्हारी प्लानिंग कैसे कामयाब होगी, क्या प्लानिंग थी तुम्हारी? अब मैं प्लानिंग की अहमियत बता रहा हूं आपको। उसने कहा जनाब देखिए, जिस दिन इन्होंने ऐलान किया कि ये मुकाबला होगा, उसी दिन से मैं रोजाना इस मार्केट में आता हूं और आके देखता हूं फलां चीज कहां पड़ी है, इसके रास्ते कौन से हैं, कहां से मुझे भागना है, कहां से चीज उठानी है, किस तरह मैंने अपना टाइम बचा। कहता 1 महीना मैंने प्रैक्टिस की है इसकी, रोजाना आता हूं, दौड़ लगाता हूं, देखता हूं, चीजें देखता हूं, रास्ते तलाश करता हूं। तो बड़ी सुपर मार्केट में रास्ते भी आसानी से नहीं मिलते, तो मैंने पूरा नक्शा बनाया है और पूरी उसकी बार बार 1 महीना प्रैक्टिस की है, तब मेरी प्लानिंग कामयाब रही। अल्लाह अकबर। अब सोचिए दुनिया के लिए प्लानिंग, और वो जो प्लानिंग हमेशा हमेशा के लिए है, हम कभी उसका नहीं सोचते कि काश रमजान के बारे में हमारी प्लानिंग कामयाब हो जाए, और जब रमजान रुखसत हो रहा हो तो हम भी इसकी तरह नारा लगाए कि हमारी प्लानिंग कामयाब हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र। लेकिन कहाँ होती, मेरे जैसे तो ऐसे ही रह जाते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, दर्दमंदाना दरख्वास्त है, आज का दिन है या ज्यादा कल का दिन, और ये 2 दिन भी बड़े होते हैं। अगर कोई इंसान कुछ काम करना चाहे, 2 दिन भी बड़े होते हैं। बैठिए, गौर कीजिए कि पिछले साल क्या कमी थी हमारे अमाल के अंदर, हमारे अमल के अंदर, दुआओं के अंदर, जिक्र अस्कार के अंदर, तस्बीहात के अंदर, नमाजों के अंदर क्या कमी थी कि उसको हम किस तरह दूर करें।
ताकि हमारी प्लानिंग कामयाब हो जाए और रमज़ान जाते हुए ऐलान करके जाए कि ये हैं वो कामयाब बंदे जिनकी मैं अल्लाह के हुजूर सिफारिश करूँ। यानी जाते हुए रमज़ान में ये मोहर लगा के जानी है, नाम लिख के जाने हैं उसने कि कौन कौन से बंदे हैं जिनकी मैंने अल्लाह के हुजूर सिफारिश कर। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में जहाँ बहुत सी शफाअतें होंगी, अंबिया की होंगी, औलिया की होंगी, सुलहा की होंगी, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी, वहाँ कुछ आमाल भी सिफारिश करेंगे जिनके अंदर सबसे अहम तरीन आमाल जो है वो रमज़ान है और कुरान है। जो अपने से मोहब्बत करने वाले उसी सिफारिश करेंगे अल्लाह के हुजूर, अल्लाह से झगड़ेंगे और उसकी बख्शिश करवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे मोहतरम दोस्तों, ज्यादा नहीं मैं कहता, इस रमज़ान में सिर्फ ये करें, प्लानिंग करें कि हम कोई तीन काम लिख लें कि इस दफा हम ये 3 नफली नेकियां ज्यादा करें। फराइज तो करने ही करने, यानी नमाज फराइज वो उसकी तो छूट नहीं है। कोई नफल अमल जो आप करते हैं, कोई से 2-3 अमल लिख लें, बैठें कि ये इंशाल्लाह इस रमज़ान के हम ज्यादा करें। अगर हम 100 रुपया देते थे सदके के अंदर 200 देंगे, 2 नफल पढ़ते थे 4 नफल पढ़ेंगे, किसी गरीब की मदद करते थे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यानी नेकी की जिस सीढ़ी पर आप खड़े हैं ये तहिया कीजिए इस रमज़ान में उससे आगे बढ़े, चाहे एक दर्जा ही क्यों ना हो, एक कदम ही क्यों ना उठाया हो, लेकिन अल्लाह के हुजूर दिखाएं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। या अल्लाह हम मुखलिस हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, यानी ये हिसाब लगाएं, नेकियों से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम अपने गुनाह किस तरह कम करते हैं। ये बड़ा जरूरी है। इंसान बाज़ औक़ात ये करता है कि नेकियां तो बढ़ा लेता है, गुनाहों की खिड़कियां बंद नहीं करता, जिससे उसका फायदा खत्म हो जाता है। यानी जब भी आसफ साहब ये चलाते हैं एसी, ये सारी खिड़कियां बंद करते हैं, अंडरस्टूड है कि बंद करनी चाहिए, वरना यही ठंडी हवा बाहर निकलती जाए। अगर हमने नेकियां बढ़ा ली हैं, नेकियों के एसी लगा लिए हैं, तो फिर जरूरी है गुनाहों की खिड़कियां बंद की जाए, वरना वो नेकियों के एसी जो है काम नहीं करेंगे, हवा आएगी चलती जाएगी, बाहर निकलती जाएगी। इस रमजान में ये फैसला करें कि हमने गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बुरा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, बदनजरी नहीं करनी, गलत नहीं देखना। आज के दौर में ये बड़ा बहुत ही ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। पहले दौर में तो बुरा देखने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब तो जेबों के अंदर मोबाइल पड़े, अब मसला ही नहीं है। अब ज्यादा बड़ा इम्तिहान है, आज के रमजान का इम्तिहान पहले रमजानों से कहीं ज्यादा बड़ा है। यानी अपनी नजरों की हिफाजत करना ये मामूली नहीं है। यानी कोई बंदा ये कह ले कि या अल्लाह इस रमजान में मेरा वादा है कि अपनी नजरों की हिफाजत करूं, मैं अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करूंगा, तो इंशाल्लाह उसकी नेकियां फिर काम आएंगी। नेकियों की खिड़की जो है, नेकियों की ठंडक जो है वो उसको महसूस होगी। यानी नेकियां करते हुए, नेकियों को बढ़ाते हुए जरूरी है कि पहले इंसान ये फैसला करे कि मैंने अपने गुनाहों को कंट्रोल करना है, गुनाहों को कम करना है। अब देखिए, अगर इंसान को कोई बीमारी हो और बीमारी के लिए दूर करने की ताकतवर अशिया खाना शुरू कर दे, खमीरे खाए, मुरब्बे खाए, ग़िज़ाएं खाए कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, नहीं होगी। वजह क्या कि जिस्म के अंदर जो जरासीम मौजूद है उनको मारने की कोशिश नहीं की। अब नतीजा क्या होगा कि इस मुरब्बों से, इन ग़िज़ाओं से वो जरासीम भी मजबूत होना शुरू हो जाए। दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसान बीमार का बीमार है, कुछ जरासीम भी अब मजबूत हो रहे हैं। तो हमारा मामला भी कुछ ऐसा ही है। पहले उसको ये चाहिए था कि एंटीबायोटिक खा के जरासीमों को हलाक करता और फिर ये मुरब्बे, फिर ताकत वाली अशिया खाता तो इंशाल्लाह जिस्म को तक़वियत मिलती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही सूरत हाल कुछ हमारे साथ। नेकियां बढ़ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, नेकियां बढ़ जाती है रमजान में, लेकिन गुनाह जो हो रहे थे वो कम नहीं होते। गीबत वही मौजूद रहती है, धोखा मौजूद रहता है, मिलावट मौजूद रहती है, झूठ मौजूद रहता है, ये सारे काम मौजूद रहते हैं। और इनमें सबसे बड़ा अमल जो वो गीबत है, यानी फजूल बैठे हम गीबत किए जा रहे हैं और नेकियां जो है वो ज़ाया होती चली जा रही, नेकियां आ रही हैं, ज़ाया होती चली जा रही। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम प्लानिंग करें उसके अंदर ये शामिल करें कि हमने इंशाल्लाह इस दफ़ा अपने गुनाहों को कम करना है। और जब गुनाहों को कम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारी नेकियां जो है
جو ہم نے کی ہوں گی رمضان کے اندر، پھر ان کے اثرات جو ہیں انشاءاللہ ظاہر ہوں گے۔ اور یہ کوشش کر لیں کہ زیادہ نہیں میں کہتا، یہ کوشش کریں کہ ہم نیکی کے جس درجے پر کھڑے ہیں یہ طے کریں کہ ہم نے ایک قدم آگے بڑھانا ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید جو ہے ہم پڑھنا نہیں جانتے تو اس کا ایک قدم ہے کہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ تلاوت اگر کرتے ہیں الحمدللہ تو تلاوت سے آگے بڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ کا فضل ہے سمجھتے بھی ہیں تو آگے بڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر عمل بھی کرتے ہیں تو اور آگے بڑھیں، دوسروں کو اس کا پیغام جو ہے پہنچانے کی کوشش کریں۔ یعنی جس بھی درجے پر آپ کھڑے ہیں کوشش کریں ایک درجہ آگے بڑھتے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو کم از کم یہ ہے کہ نماز پڑھنی شروع کر دیں، ایک درجہ آگے بڑھ گیا۔ نماز پڑھ رہے تھے الحمدللہ جماعت سے پڑھنی شروع کر دیں، جماعت سے پڑھ رہے تھے الحمدللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی شروع کر دیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے تھے خشوع و خضوع کے اندر اضافہ کریں، اور وہ بھی کر رہے تھے سنتوں و نفلوں کے اندر اضافہ کریں، تاکہ ہمارا ایک درجہ ہم آگے بڑھ جائیں، ایک درجہ سٹیپ ہو اور آگے بڑھے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے، تو خدا کے لیے رمضان کے لیے پلاننگ کریں، اور خود نہیں کریں، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ بٹھا کے کریں اور مشورہ کریں کس طرح ہمارے گھر میں رمضان کی برکات آ جائے اور کس طرح گناہوں کی نحوست جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ رمضان میں عام طور پر مسلمان زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے، جس سے رمضان فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے۔ تو اگر آپ اس سال رمضان طے کیا ہوا ہے تو اس کے لیے مت بھولیے، رمضان کے لیے اس کو زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب کیجیے۔ اس بار اسٹیٹ بینک نے تقریباً 89,990 کا نصاب جو مقرر کیا ہے، یعنی 90,000 اب لگائیں، جس کے پاس بھی 90,000 یا اس سے زیادہ رقم ہے کسی بھی شکل میں، کیش کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا حساب لگائے، ضروری ادا کرے۔ اور ایک غلط فہمی دور کر لیجئے، روزے اور تراویح دونوں آپس میں لازمی نہیں ہیں، یعنی اگر کسی وجہ سے آپ تراویح نہیں پڑھ سکے، روزہ تب بھی فرض ہے آپ کا، روزہ تب بھی فرض، تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ تو تراویح کی کوشش کیجئے، لیکن اگر کبھی آپ نہیں پڑھ سکے تو روزہ معاف نہیں ہوگا، روزہ بہرحال آپ کو رکھنا ہے، اور وہ تراویح کے بغیر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔